Online classes, class 9th, subject geography, chapter 4th, climate, Jalvayu. In the last two chapters, you have read about the landform and the drainage of our country. These are the two of the three basic elements that one learn about the natural environment of any area. In this chapter you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over our country. Why do we wear woolens in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June, July? The answers to all these questions can be found out by study about the climate of India. पिछले दो अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियाँ एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक तीन मूल तत्वों में से दो तत्व यही है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके हम जान सकेंगे। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. Weather refers to the state of the atmosphere over on an area at any point of time. The element of weather and climates are the sum, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitations. You might have observed that the weather condition fluctuate very often, even within a day, but there is some common pattern over a few weeks or months. Last dates are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry on the basis of the generalist monthly atmospheric conditions. The year is divided into seasons such as winter, summer और rainy seasons. एक विशाल क्षेत्र के लंबे समयावधि जो 30 वर्ष से अधिक मौसम में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया हो कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा अर्ध या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, वर्ष, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। The world is divided into a number of climate regions. Do you know that type of climates India has and why it is so? We will learn about it in this chapter. विश्व में अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा यह कैसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। The climate of India is described as the monsoon type in Asia. This type of climate is found mainly in the south and the southeast. Despite on overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climate condition within the country. Let's take two important elements, temperature and precipitations, and examine how they vary from place to place and season to season.
अब भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इसी प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। समानता प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षा को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार से भिन्नता है। इन समर द मर्क्यूरी occasionally touches 50 centigrade in some part of the Rajasthan desert, whereas it might be around 20 centigrade in Pahalgam in Jammu and Kashmir on a winter night. Temperature at Dras in Jammu and Kashmir might be as low as -45 centigrade. Thiruvananthapuram, on the other hand, might have a temperature of 22 सेंटीग्रेड। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 45 डिग्री से तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 सेंटीग्रेड से हो सकता है। लेट अस नाउ लुक एट precipitations. There are variations not only in the form and type of precipitations but also in its amount and the seasonal distributions. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 100 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. Most part of the country receive rainfall from June to September, but some parts like the Tamil Nadu coast get a large portion of its rain during October and November. अब वर्षण की ओर से ध्यान दें कि वर्षण के रूप में तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। देश में अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस contrast in temperature conditions. Seasonal contrast are more in the interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. अब समान रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान का अंतर कम होता है। देश में आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यह भिन्नताएं लोगों को जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों में प्रकार में दिखती है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, जलवायु नियंत्रण। There are 6 major controllers of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक अक्षांश, तुगता, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चवच लक्षण। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. एज ए रिजल्ट, एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर
towards the poles as one goes from the surface of the earth to higher altitudes. The atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreasing, and the people experience extreme weather conditions. This conditions is now as constantly ocean currents along with onshore wind affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warmer or cooled if the winds are onshore. अब जलवायु नियंत्रण किसी पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विस्तृत वृत्त में ध्रुवों की असमानता घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाती है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इससे पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र में वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा का वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र की जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है तो यह प्रभाव कम हो जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीप अवस्था गर्मी में बहुत अधिक और गर्मी एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। फाइनली रिलीफ टू प्ले ए मेजर रोल इन determining the climate of a place. High mountains act as barriers for cold or hot winds. They might also cause precipitation if they are high enough and in the path of rain bearing winds. The leeward side of mountains remain relatively dry. अब महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र के से तट की ओर हो, जब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चवच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी और तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई अधिक हो तो वे वर्षा लाने वाले वायु को रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो यह उस क्षेत्र की वर्षा का कारण भी बन जाता है। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। लैटिट्यूड अक्षांश। The tropic of Cancer passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belong to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climate. अब अक्षांश कर्कवृत्त देश में मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उच्च कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। अल्टीट्यूड ऊंचाई। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच have an average height of about 6,000 meters. India also has a west coastal area where the maximum
elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold wind from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to Central Asia. ऊंचाई भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय क्षेत्र में विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हें पर्वतों के कारण इस क्षेत्र के मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। प्रेशर एंड विंड्स, वायुदाब एवं पवन। द क्लाइमेट एंड associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। अपर एयर सर्कुलेशंस एंड, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इंडिया lays in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere, where blow southward, get deflected to the right due to the Coriolis forces and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. Let's see why. अब भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवती निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों को नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय दाबों पर उत्पन्न होती है और एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस over India are unique. During winter, there is a high pressure area north of the Himalayas. Cold, dry wind blow from this region to the low pressure area over the ocean to the south. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of wind during summer. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. These are now as the southwest monsoon wind. These wind blow over the warm ocean, greater moisture and varying widespread rainfall over the mainland of India. अब देखते हैं भारत में वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्व भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है। यह पवनें कोस्टल महासागरों के ऊपर बहती हैं, नमी ग्रहण करती है और भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती
है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव में एक मुख्य घटक जेट धारा है। These jet streams are located approximately over 2730 north latitude. Therefore, they are now as subtropical westerly jet stream over India. These jet streams blow south of the Himalayas all throughout the year except in summer. Thus, western cyclonic distributions experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow. In summer, the subtropical western jet stream moves north of the Himalayas with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blow over peninsular India approximately over 40 north during the summer months. अब दक्षिण में प्रभावित होती जेट धाराएं लगभग 27 से 30 उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत में ऊपर लगभग 14 सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती हैं। थैंक यू।